वेलकम बैक टू मार्केट पल्स विद आदित्य एंड निकिता। तो एज प्रॉमिस्ड कि अगर 500 लाइक्स मिलते हैं हमारे पिछले वीडियो को, सो आई विल बी शेयरिंग अ बजट एनालिसिस। सो हियर आई एम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर likes and for your comments. So what we are going to do today is basically we are going to dissect the past 5 year data and उसके basis पे we will try to devise one strategy और हम देखते हैं उसको how we can plan for this particular budget as well. So without wasting any time, let's get started. Before even understanding कि क्या हुआ है पिछले historical years में, first let's go and check India VIX. Okay, तो अभी के लिए if I check India VIX till yesterday, so I am recording this particular video on 30th of January. So till 29th of January, VIX was somewhere in the range of 18 and on 30th of January, where we saw a monthly expiry, यहाँ पर थोड़ा सा cool off हुआ है. But let's go and check historically on the budget days what had happened. ठीक है, so 2024 में we had two budgets. One was the interim budget and one was the final budget because it was an election year. So July 2024, 23rd July 2024 was the day of budget. So अगर आप यहाँ पर देखोगे तो before budget it was somewhere around 16 के आसपास and on the day of the budget basically India VIX crashed all the way till from roughly 16 to 12.5. Now let's go उसके पहले February 1st 2024. So here also you can see from 16.5 it went down to 14.36. Thereafter in 2023 हमने देखा था 19 के आसपास prior to the budget and post on the budget day in fact it made a doji and we will discuss why it made a doji. Basically यहाँ पर दिखा रहा है कि ये नीचे गया था but whatever happened most likely a fall should have happened, right? Whenever India VIX increases तब fall होता है और हम इस चार्ट को जाकर देखेंगे तो ये 16.8 के आसपास हुआ था and later after the day of the budget थोड़े दिनों के बाद it stabilized somewhere around 13 के पास, मतलब there was a sharp fall. उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा stable हुआ before rising. In 2022 if you see like January, मतलब before the budget we were already hovering somewhere around 25 के आसपास का हाई बनाया था. Of course, 1st February को we made a low of 20, that's it. But उसके बाद 16 तक गए थे हम. This was in the year 2022. Coming to the year 2021, prior to the budget, VIX had gone up till 26 and on the day of the budget it crashed to 23. In the year 2020, like just before COVID hit us, उसके पहले अगर आप देखोगे तो India VIX जो थी वो almost 18 तक पहुंची थी just on the day of the budget and it didn't cool off much on the same day. But you know over the next few days it definitely declined before rising up due to COVID. July 5th 2019 यहाँ पर एक फाइनल बजट थी बिकॉज अगेन 2019 वाज एन इलेक्शन ईयर. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 15.6 से 13.96 आया था और उसके काफी दिनों के बाद, मतलब 2-4 दिनों के बाद देयर वाज अ कूल ऑफ एंड उसके बाद देयर वाज अ स्पाइक. कमिंग टू आवर लास्ट डेटा व्हिच वाज February 2019, तो यहाँ पर क्या हुआ था ऑलमोस्ट 20 लेवल्स तक इंक्रीज हुआ था इंडिया विक्स एंड ऑन द डे ऑफ द बजट इट कूल्ड ऑफ ऑल द वे टिल 15.72 बिफोर राइजिंग अप फॉर सम अदर इवेंट्स. तो यहाँ पर एक तो कंक्लूजन क्लियर है कि इंडिया विक्स जो राइज हो जाती है वो कूल ऑफ या तो उस दिन हो जाती है मे और मे नॉट, बट इट डेफिनेटली आई मीन फॉल्स ऑफ ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 days. ये क्लियर ट्रेंड दिख रहा है हमें ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा. तो नाउ वी व्हाट आर वी गोइंग टू सिंपली डू, हम सिर्फ निफ्टी में जाकर देखेंगे व्हाई निफ्टी जस्ट निफ्टी इज बिकॉज बैंक निफ्टी एज इट इज हैज बीन पुश टू मंथली. तो अगर वीकली में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी ही है एंड बिकॉज निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग काफी पहले से थी और सेंसेक्स हैज बीन मतलब रिसेंटली डेरिवेटिव्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें. सो दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू ओनली यूज निफ्टी इन दिस केस. व्हाटएवर सूट्स यू एंड आप उसमें भी मतलब सेम ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं. बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड ये 23rd of July 2024 जो कि हाल ही में हुआ था. दिस वाज बेसिकली द फुल बजट आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जो अभी की इस साल की जो इलेक्शन थी उसके बाद की. नाउ फर्स्ट लेट्स गो एंड चेक इट ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम. तो ये था 22nd of July which was one day before the budget. One day before the budget if you see यहाँ पर इसने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, साइडवेज रहा and on the day of the budget it opened almost near previous day के रेंज में ही खुला मार्केट. और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये साइडवेज ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी विल बी हाई, नो डाउट अबाउट इट. और अगर हमने हाल ही में भी देखा होगा तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी जरूर हुई है बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एक रेंज में रहा मार्केट. और रिमेंबर दिस टाइम बजट इज ऑन 1st of February which is फॉलोइंग ऑन अ सैटरडे. और अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जो इसके पहले जो सैटरडे को जो बजट हुई थी दैट वाज इन द ईयर ऑफ 2020. तो 2020 February 1st वाज अ सैटरडे, तो उस दिन भी सैटरडे को ही बजट हुई थी. तो बजट में क्या होगा, ये 11 o'clock के आसपास शुरू होने वाला है. अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एक रेंज फॉर्मेशन हुआ था. उसके बाद अगर आप देखोगे 12:15 के आसपास मार्केट में एक शार्प
फॉल आया एंड इक्विवेलेंट मतलब अप मूव भी आई। अगर आप लोग को अगर लग रहा है कि फॉल बहुत बड़ी नहीं है तो लेट मी जस्ट मेजर इट फॉर यू गाइस। सो इट एक्चुअली वेंट ऑल द वे टिल 1.36 एंड इफ यू कंसिडर टिल द वीक इट्स roughly 1.67% एंड इमीडिएटली इट गॉट रिकवर्ड एंड जस्ट लाइक मतलब बहुत ही इमीडिएटली रिकवर हुआ, ये कैंडल के हाई को भी निकाला और मोर और लेस इट समवेयर closed somewhere wherever it opened, thereby leaving a very long wick on the daily कैंडल। कहने का मतलब इंपॉर्टेंस ये है कि जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर डे बिकॉज देर विल बी वेरी शार्प मूव्स। So if you're the one who don't like to trade without the SLs, so please do skip this particular day. This day is not for you. SLs are definitely required. Second and the most important thing is something called as the position sizing, जो कि very very important है on days like budget, election or any such event days. Maybe RBI policy in case you are trading Bank Nifty. On all those event days, it's very important that you need to have strong control on the position sizing as well as you should be disciplined enough as to when to get out, ठीक है? Because ये क्या होता है, let's assume कि आपने यहाँ पर SL नहीं रखा था and then it reversed, that's okay. But what if it would have continued the downfall? So that's the reason it's very important to have SLs in the system and also understand कि what is the maximum risk that you can afford to lose on these kind of days. Only take that kind of a risk. उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, भले कितना ही अच्छा आपके पास स्ट्रैटेजी हो, भले ही कितने ही बैक टेस्टेड काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी है ये। तो दिस वाज द फर्स्ट 23 जुलाई वाली और उसके बाद हम जाके देखते हैं 1 February 2024। 1 February 2024 इफ आई जस्ट शो यू, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट नियर ऑल टाइम हाई के आसपास ही था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था ऑल टाइम हाई से। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल एंड अ टाइनी कैंडल, एज सच इट डिडंट डू एनीथिंग। नाउ रिमेंबर दिस ईयर जहाँ पर 2024 में ये इंटीरियम बजट था बिकॉज इलेक्शन आने की बाकी थी, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स आना, इलेक्शन कंडक्ट होना और उसके रिजल्ट्स आना बाकी था और फिर न्यू गवर्नमेंट को एक फाइनल बजट देना था। तो ये इंटीरियम बजट में एज सच कुछ नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे जस्ट 80.8% के अंदर, मतलब अंडर 1% के अंदर निफ्टी रहा है। तो दिस इज बेसिकली फॉर दोस ऑफ देम जो लोग एट द मनी स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल्स प्ले किया होगा, उनके मतलब उन ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के दिया होगा। डेफिनेटली ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ भी पैसा नहीं बना के दिया होगा ये, नीदर साइड। वी विल गो एंड चेक इट ऑन द 15 मिनट एज वेल। तो चेक दिस आउट, दिस वाज द प्रीवियस डे। ये इसके पहले बजट के पहले वाला दिन था। ये अच्छा खासा अप मूव किया था और साइडवेज होके बंद हुआ था। अगले दिन ये गैप अप से खुलता है बट ये देखिएगा कुछ भी नहीं करता है, पूरा ही दिन एक रेंज में रहता है। इनफैक्ट वो रेंज लास्ट में छोटी हो जाती है, जो पहले सुबह इतनी थी वो उसके बाद बिल्कुल भी छोटी हो जाती है। तो ऐसे दिन पे ऑप्शन बायर्स का लिटरली पैसे नहीं बनेगा। तो आर वी एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एन मूव? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो and we will come to that, but let's first go and understand the historical analysis. Now we are here on the year 2023, 1 February 2023। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कैंडल जो थी, दिस वाज द एग्जैक्ट ईयर, अगर आपको याद है, जहां पर इंडिया विक्स में भी एक डोजी बनी थी। तो मैंने आपको कहा था कि ये फॉल हुआ था और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड इट मूव्ड अप, इसका मतलब फॉल आया था मार्केट में। सो दिस इज एग्जैक्टली 2023 वाला ईयर, जहां पर अगर आप देखोगे 3.44% का पूरा इंट्राडे का मूवमेंट है। ठीक है, नाउ द स्केरी पार्ट इज नॉट जस्ट अगर 3.44% सिंगल साइड है, दैट इज स्टिल ओके फॉर द डायरेक्शनल प्लेयर्स, बट दिस 3.44 इज वेरी वियर्ड एंड आई विल शो इट टू यू ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, नाउ अगेन रिमेंबर टाइमिंग्स याद रखेगा। ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ मतलब जा रही थी, बट अगर आप डेली में देखोगे, डेली में मार्केट नीचे आ रही थी। आई शो इट टू यू अगेन। ये देखिए, मार्केट यहाँ पर से एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आई थी और यहाँ पर कहा वेट करी थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा अप मूव डेफिनेटली क्रिएट किया था, जस्ट वन स्विंग, दैट्स इट। So coming on the 15 minute, now remember whenever the budget starts, it starts at 11 AM, ठीक है, 11 बजे स्टार्ट होती है। और जैसे मैडम एक इंडस्ट्री के लिए या एक सेक्टर के लिए she keeps on proposing what the budget has planned for the economy and बहुत सारे proposals रखते हैं कि हमने ये बजट के लिए ये प्लान किया। So 11:30 onwards is when her commentary starts। तो वो खत्म होते होते लगभग 1 बज जाती है on the rest of the sectors and somewhere near 1 is she talks about the individual tax के ऊपर क्या है क्या नहीं, एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली बाय 1:30 और मैक्सिमम 2 o'clock तक यूजुअली बजट क्लोज हो जाती है। दैट्स व्हेन द सेकंड लेग आल्सो स्टार्ट। तो इफ आई जस्ट वांट टू मतलब मैप इट एज पर द टाइमिंग्स, सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जस्ट
अंडरस्टैंड करते हैं। तो 11 o'clock इज व्हेन हर बजट मतलब उनका जो स्टॉक है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखिएगा, ये एक अच्छी खासी वीक आ गई। तो दिस इज व्हेन शी स्टार्ट स्पीकिंग एंड मार्केट स्टार्ट्स टू प्राइस इन सम ऑफ द अदर थिंग। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छा बताया होगा जिसकी वजह से मार्केट में एक शार्प अप मूव आई थी। एक रेंज है, रेंज को ब्रेकआउट किया मार्केट ने और उसके बाद आप देखोगे एक फाइनल डाउन मूव दिया है एंड ऑब्वियसली देयर वाज दिस वन मोर नी जर्क रिएक्शन। बट इफ यू सी देयर वर 3 ट्रेंड्स, वन बिफोर लाइक रफली बाय 12 o'clock या 12:30 तक मैक्स। आप समझ के रखिएगा कि बाय 12 साढ़े 12 तक एक मार्केट में कुछ नहीं होता है बिकॉज एवरीवन इज नाउ वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी ऑप्शन सेलर्स, शॉर्ट स्ट्रैडलर्स, शॉर्ट स्ट्रैंगलर्स, इनको बहुत ही ब्यूटीफुली पैसे मिल जाता है। एंड उसके बाद जो डायरेक्शनल प्लेयर्स है, इफ यूर ऑप्शन बायर, बेसिकली यू हैव टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर टाइम जोन इन द मॉर्निंग। एंड इफ यूर ऑप्शन बायर, देयर आर 2 थिंग्स यहाँ पर, या तो आपको ये वाला डायरेक्शनल मिल सकता है जब भी एक रेंज को करता है, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक टू बुक आउट योर प्रॉफिट्स, राइट? और एटलीस्ट यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू ट्रेलिंग। लेट्स से इवन इफ यू वुड हैव ट्रेल्ड टिल हियर और ये जब नीचे आएगा, एटलीस्ट यू वुड हैव मेड दिस मच। तो दैट्स द आइडिया। ऑफ कोर्स आई मीन आपको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा टू गेट बेटर एंट्रीज, बट द आइडिया इज, लेट अस से कि अगर आपने इधर भी ट्रेल किया होता यू वुड नॉट हैव लॉस्ट मच, बट इफ यू वुड हैव केप्ट इट ओपन देन ऑब्वियसली आपका अच्छा ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में भी जा सकता है। ठीक है, एसएल भी ले सकता है यहाँ पर, कि याद रखिएगा यहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज आफ्टर द शार्प अप मूव देयर वाज अ वेरी शार्प डाउन मूव। यहाँ पर अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड 1 o'clock 1:30 के आसपास द ट्रेंड गॉट सिग्निफिकेंटली चेंज। सो देयर आर 3 पार्ट्स टू द एंटायर बजट डे। द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली फॉर ऑप्शन सेलर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट बेसिकली साइडवेज रहता है। बेसिकली पीपल आर वेटिंग फॉर हर टू कम एंड टॉक अबाउट द सेक्टर्स एंड व्हाट आर द what all things the government has planned for the upcoming budget. तो तब तक एंटिसिपेशन में बेसिकली मार्केट कहीं नहीं घूमती है टिल 12:30 के बाद एक मेजर ट्रेंड आती है और उसके बाद उसकी काउंटर ट्रेंड आ सकती है या कंटिन्यूएशन आ सकती है। सो वी विल गो एंड चेक। सो इन 2023 व्हाट हैज हैपेंड, देयर वाज अ काउंटर ट्रेंड आफ्टर द इनिशियल ट्रेंड। नाउ लेट्स क्विकली गो टू February 1st 2022। इसके पहले क्या हुआ था, मार्केट में एक फॉल आई थी और उसके बाद मार्केट एक अप मूव जाने की कोशिश की थी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे मार्केट ने डेफिनेटली एक लोअर विक तो जरूर बनाई है। तो लेट्स गो एंड चेक इट ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम एज वेल। बट बिफोर गोइंग टू 15 मिनट आई जस्ट वांट टू मेजर इट आउट कि अगर यहाँ पर भी आप देखोगे 2% की इंट्राडे की मूवमेंट जरूर है यहाँ पर भी। अगेन सेम स्टोरी देखिएगा, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई थी ऑन द डे ऑफ द बजट इफ यू कैन सी, एंड उसके बाद मार्केट कहीं नहीं जा रही है फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आर कट ऑफ पीरियड फॉर ऑप्शन सेलर्स, अगर आप लोग स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बेच रहे हो तो आई वुड रेकमेंड 12:30 बिकॉज उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। आई डोंट वांट यू टू बी लाइक स्टेइंग वेरी फार अवे कि मतलब उसके लास्ट मिनट तक आप यूटिलाइज करो। इट्स बेटर टू गेट ऑफ, क्योंकि आपको सुबह से 9:15 से 12:30 तक काफी टाइम मिल जाता है, 2-3 घंटे। तो दिस इज वॉट आई वुड रेकमेंड कि ऑप्शन बायर्स जो है ये यहाँ से मतलब नहीं रहे तो बेटर रहेगा ये वाले इस पे। देन सी लुक एट दिस वन, ये ब्रेकडाउन आ गया, आपको इमीडिएटली एक ट्रेंड मिलता है। इफ यू वुड नॉट हैव बुक्ड और इफ यू वुड नॉट हैव ट्रेल्ड यू वुड हैव लॉस्ट इट ऑल। एक ऑप्शन सेलर्स के लिए एक साइडवेज मार्केट फर्स्ट हाफ में टिल 12:30, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव, उसके बाद एक काउंटर मूव। ठीक है, और अगर आपको मैं टाइम बताऊं काउंटर मूव की, ट्रेंडिंग मूव आई है हमारे लिए समवेयर अराउंड 1 o'clock के आसपास और काउंटर मूव बिल्कुल भी नेक्स्ट कैंडल विच इज समवेयर अराउंड 1:15-1:30 के आसपास पूरी तरह से काउंटर मूव आ चुकी है। तो जस्ट रिमेंबर दैट्स द रीजन। इफ यू रिमेंबर ये डेली में क्या हुआ था, एक लॉन्ग विक था इसमें, तो याद रखिएगा। लेट्स क्विकली गो ऑन द इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2021 1 February 2021 मार्केट में एक शार्प फॉल था, कंटिन्यूअसली फॉल था इनफैक्ट just before the budget, and it opened with a gap up, and look at this particular trend, very strong up move. So let's go and check it on the 15-minute. तो ऑन द 15 मिनट व्हाट वी हैड सीन, एक गैप अप ओपन होती है। अब अगर आप प्रीवियस डे के रेंज के आसपास देखोगे तो यहाँ पर सेवरल टाइम्स मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ठीक है, और यहाँ पर वैसे तो साइडवेज रहा है बट यहाँ पर देखो ऑलरेडी अप मूव मतलब एक मूवमेंट आना शुरू कर दिया था। दिस वाज रफली 11:15 के आसपास। तो अगर आपका एसएल हिट हो जाता है फॉर ऑप्शन सेलर्स सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू गेट आउट, राइट? तो आई विल जस्ट मार्केट अगेन, ये देखिएगा यहाँ पर मार्केट बेसिकली ऑन द प्रीवियस डे इट टुक रेजिस्टेंस सेवरल टाइम्स समवेयर अराउंड 13,875 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने सुबह से एक छोटी सी एक रेंज बनाई थी यहाँ पर, और उसके जैसे ही ये रेंज को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करता है स्टिल ओके, बट यहाँ पर वेट करता है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर, ये रेजिस्टेंस कितने बार ले चुका है और यहाँ पर ये टाइम भी बता रहा है, और उसके बाद कैन यू सी द शार्प अप मूव, राइट? उसके बाद देयर वाज नो काउंटर ट्रेंड इन दिस केस, इट जस्ट वेंट वन साइडेड, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि इसके पहले देयर वाज अ
कंटिन्यूस फॉल ऑन द डाउन साइड। यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली बात यह है दैट दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल, इफ यू जस्ट मेजर इट, आई जस्ट मेजर इट फॉर यू गाइस, तो इट वाज रफली 2% का वन सिंगल कैंडल ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उसके बाद ये अपमूव को कंटिन्यू करती रही। ऑब्वियसली द वेरी नेक्स्ट डे ऑल्सो द अपमूव कंटिन्यूड। तो ये याद रखेगा कि अगर ऐसा कुछ आता है तो देन वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड दैट देयर विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मूव, बट नंदरलेस वी हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेल करते चलेगा आपके प्रॉफिट्स, बिकॉज वी डोंट नो कि आज ये ट्रेंडिंग कंटिन्यू करने वाली है और रिवर्सल लेने वाली है, ठीक है। So that's the reason, very important. But again in this case, remember the first half again belongs to option sellers. Obviously यहाँ पर ये उनकी एसएल्स हिट हो चुकी होगी, but then you have to be very careful. Then just play for the entire trend, or if there is any counter trend, as I said कि आप ट्रेल करते चलेंगे तो फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। कमिंग टू 2020, जहाँ पर जो बजट थी वो बिल्कुल भी सैटरडे को थी। आई जस्ट मार्क इट हियर, कैन यू सी सैटरडे 1 Feb 2020, दिस वाज द ईयर। और यहाँ पर मार्केट ने बेसिकली बहुत ही सिंगल साइड का डाउन मूव दिया था ऑन इन दिस पर्टिकुलर ईयर, रफली 3% की, मोर देन 3%। तो लेट्स गो एंड चेक इट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। इन दिस केस अगर आपको देखो प्रीवियस डे से ये लोअर हाई लोअर लो की वैसे भी पोजीशंस चल रही थी, नथिंग न्यू। नाउ उसके बाद क्या होती है, मार्केट में एक हल्की सी गैप डाउन ओपन होती है और प्रीवियस डे के लो के नीचे आसपास ओपन होती है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू कंटिन्यू द अप मूव, बट इट फेल्स टू ब्रेक द स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई, बिकॉज याद रखिएगा ये लोअर हाई लोअर लो के इस पे चल रही थी और ये इमीडिएटली इट स्टार्ट्स टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन। जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करती है, देन द ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट्स टू किक इन। नाउ बिफोर दैट यहाँ पर मैंने आपको अगर दिखाओ, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विद दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ओनली। तो लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ पर इनिशिएट किया होगा आपके शॉट और आपने एसएल रखा होगा ये पर्टिकुलर हाई के या ये पर्टिकुलर कैंडल के हाई के। स्टिल इफ यू कैन सी यहाँ पर आपका एसएल डेफिनेटली गया होगा। So that's the reason, as I said, even if you were right on your trending part, still because the India VIX at that point of time and the volatility of the options will be so high that it is very much possible that despite being on the right direction, you might get thrown off because of the high volatility wherein your SLs will get hit. तो इसके लिए क्या कर सकते हो? What can one do? First and foremost, one can hedge. And if you ask me, I don't hedge, so मतलब the only thing that I have is SLs. So हम SLs के साथ play कर सकते हैं। और थर्ड थिंग आप ये भी कर सकते हो कि आप क्वांटिटी और पोजीशन साइज को बहुत ही ज्यादा कम कर लीजिएगा। इनफैक्ट आई तो वुड रेकमेंड कि सबसे बेस्ट वही है कि आप क्वांटिटी को बहुत बहुत ज्यादा कम कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर भी देखिएगा, ये जो आपको ऐसा लगेगा कि शायद से यहाँ से काउंटर ट्रेंड भी आ गया, तो यहाँ पर भी देखिएगा सुबह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था अगर आपने ऑप्शन सेल भी किया होता। दिस इज लुक एट दिस पर्टिकुलर 1245, जैसे हमने कहा था कि 1230 को आपको एग्जिट करना ही है और 1245 के बाद ये देखिए एक ट्रेंडिंग मूव आई है और यहाँ पर आपको लगेगा शायद से काउंटर ट्रेंड है, बट दैट्स नॉट द केस। इनफैक्ट ये तो जो भी है ये ऐसे बना के ऐसे कंटिन्यूएशन में चली गई, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर लुक एट दिस, मतलब ये जो काउंटर ट्रेंड छोटी सी आ रही है या पुल बैक्स जिसको बोलते हैं हम, ये भी देखो 1% की है। सो इट इज it's very very important that you should understand the gravity of this particular situation, that you need to have SLs in the system and you should be prepared for very very strong volatile moves. That's the reason I would rather suggest कि for people जो लोग beginners है या new है, just skip this particular trading day. There are lot many days where you can actually trade well. So in इस चीज को आप just what you can do, you can just sit and observe how the markets are working. You don't need to put your hard earned money and try it out on a very difficult day. तो I would rather suggest कि जो भी नए लोग हैं just step back and just watch the markets. That's about it. So this was on 1st of February 2020, again a Saturday, और यहाँ पर हम ऑलरेडी नीचे चल रहे थे और ये नीचे कंटिन्यू कर लिया है इसने। Now the last 2 more days, एक तो February 1st है and because 2019 was an interim was a election year, there was an ये interim budget था और इसके बाद एक फाइनल बजट भी थी। तो इंटरिम बजट में तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, एक अच्छा खासा वीक बना के आई है, विच मीन्स यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी काफी रही है। तो हम जाकर देखते 15 मिनट्स पे। So here also what we can see कि market was in an uptrend. Previous day it made a sharp up move and the very next day यहाँ पर एक देखिएगा छोटा सा रेंज बना है। जैसे हमने कहा कि ऑप्शन सेलर्स के लिए ये फेवरेबल होता है from 9:15 to somewhere around till 12:30। 12:30 को आपको निकलना है। Now let's look at this particular candle. Exactly 12:15 को इसने ब्रेकआउट दिया। So आप अगर 12:30 तक नहीं निकलते हो वैसे भी आपका एसएल हिट हो जाता है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ऑप्शन सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर होता है डायरेक्शनल प्लेयर्स का एंट्री यहाँ पर, जहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हो बिकॉज ये रेंज ब्रेक हुआ है फॉर ऑप्शन बायर्स, या पुट सेल करते हैं
for option sellers. One trend you get it, and then there is a sharp counter trend. So you have to trail your profits. You have to trail your profits if you want to make money in this kind of volatile days. So that is what I said. There is there are basically three parts to a budget trading. The three parts are basically, तो अब तक हमने जितने भी बजट्स देखे पिछले 5 सालों में, ऑफ कोर्स एक फाइनल बजट ऑफ 2019 देखना बाकी है. आई विल डेफिनेटली कवर दैट. बट मोटा मोटी हमको क्या समझ में आया कि देयर आर थ्री पार्ट्स टू अ बजट. 9:30 to 12:30 is basically when nothing happens. So this is the time for option sellers, non-directional option sellers, जहाँ पर उन लोग साइडवेज का थीटा थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज आईवीज इतने ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं, उससे ऑलरेडी बिल्टअप हो जाता है बिफोर द इवेंट, कि दैट डे उन लोग ये 9:30 to 12:30 तक. और इफ यू वांट टू बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव, जस्ट कीप इट फ्रॉम 9:30 या 9:15 to 12. दैट्स अबाउट इट. ठीक है, तो वहां तक रख सकते हो. ये टाइमिंग्स आप आपके हिसाब से यू शुड गो एंड बैक टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट टेक व्हाटएवर आई जस्ट से, बिकॉज ultimately you are going to put the money on the table basis your analysis. So you will get more conviction if you go and backtest all these things along with the options के साथ आप backtest कीजिएगा, not just the spot chart. So one is where it goes sideways, और यहाँ पर basically non directional option sellers का काम है ये. The other part is जहाँ पर 12:30 to 1:30 जहाँ पर एक ट्रेंडिंग मूव आ जाती है. तो ये ट्रेंडिंग मूव में आपको क्या करनी है, फॉर ऑप्शन बायर्स एंड फॉर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ट्रेंडिंग मूव. रेंज ब्रेकआउट जहां पर भी एक रेंज निकलती है उसके तरफ आप प्ले कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्टॉप लॉसेस एंड टू कीप ट्रेलिंग. द थर्ड पार्ट टू इट इज ईदर द काउंटर ट्रेंड और कंटिन्यूएशन. तो अगर काउंटर ट्रेंड आती है तो वो उसको आप भी प्ले कर सकते हो. बट लेट्स से इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि इतना ब्रेन में ट्विस्ट एंड टर्न्स लेना बहुत डिफिकल्ट होगा, सो जस्ट वेट पेशेंटली एंड कम ओनली आफ्टर 1:30 और 2 o'clock के आसपास. तो दैट्स द ओनली थिंग. एंड सबसे बेस्ट तो मैं कहूंगी कि जस्ट सिट असाइड, बिकॉज एज इट इज देयर इज लॉट मोर वॉलेटिलिटी दीज डेज. अभी अगर हम देखेंगे कि बजट तो खैर फर्स्ट को है, बट उससे पहले भी काफी सारी वॉलेटिलिटी हो रही है मार्केट में. तो उसको मद्देनजर रखते हुए आई वुड रादर सजेस्ट कि स्किप दिस पर्टिकुलर डे एज इट इज अ सैटरडे. तो आपको क्यों एक्स्ट्रा काम करना है, स्पेशली अगर आपने ट्रेड किया और उसमें अगर इफ यू लूज मनी देन यू वुड डेफिनेटली फील बैड एंड योर एंटायर वीकेंड वुड गेट स्पॉइल्ड. तो I would rather suggest that. But if you're very experienced, then still I would suggest कि आप आपका position sizing बहुत ज़्यादा कम कर लीजिएगा for that particular event day. और उसके बाद आप plan कीजिएगा कि कितने trades लेना है और आपको कितना loss अपने fix करना है for that particular day. Let's assume कि you have planned 0.5% of your portfolio for the total day because you don't want to lose more, because as it is these are uncertain days, so you don't want to lose more. So let's assume you are trading with the capital of 10 lakhs और उसमें आपने decide किया है कि मेरे को सिर्फ 0.5% ही lose करना है, not even more than that. So that comes to roughly 5,000. So 5,000 अगर आपको risk करना है, just don't do that in just one particular trade. तो यू हैव टू डिवाइड इट इधर दो इस पे हिस्सों में या तो फिर 3 हिस्सों में. अगर आपको ये तीनों प्ले करना है तो 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा. अगर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें प्ले करना है तो सिर्फ 2 ही इस पे हिस्सों पे डिवाइड कीजिएगा. एंड इवन इफ यू वांट टू प्ले ओनली वन साइड, स्टिल यू हैव टू डिवाइड इट ट्वाइस, बिकॉज ऐसा भी होता है कि अगर आपने वो ट्रेड लिया और उसकी वजह से आपका एसएल हिट हुआ है फॉर वॉलेटिलिटी रीजंस एंड देयर इज अगेन री एंट्री, यू कांट टेक द ट्रेड. सो दैट्स द रीजन आई सेड कि 2500 के हिसाब से आपको 2 ट्रेड प्लान्स करने चाहिए. So the idea is whenever you lose, the amount will be very small, and at the end of the day जब भी अगर मान लेते आपके तीनों की तीनों हसल्स हिट भी हो जाते हैं और आपने प्लान ही किया था 5,000 और 5,000 को अपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, still at the end of the day there won't be a shocker because that is the amount you had already planned for कि इतना I might lose. So that won't come as a shocker. As against, let's assume you are deciding कि मैं 0.5 का SL लूंगा and you take the first trade and उसी में 0.5 hit हुआ है. Now you want to you're like कि नहीं मैं अब वाला मेरा definitely work करेगा. You will again try the same thing and उसमें भी SL hit होता है. Now you're already down by -10. और आपने प्लान किया था 0.5 एंड यू आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 1%. और अभी आपके माइंड आपको ये बोल रहा है कि नाउ यू हैव टू गो एंड रिकवर. नाउ इन दैट रिवेंज ट्रेडिंग एंड विद wrong mindset you will end up losing much more, and then at the end of the day you will be sitting at a big loss which you have not planned for. तो इसीलिए I would suggest कि जो भी आप प्लान करोगे रिस्क उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा एंड ओनली वैसे आप उसको ट्रेड कीजिएगा, सो दैट इवन इफ एक एसएल हिट भी हो जाता है यू विल स्टिल हैव 1 or 2 more chances more
and within that particular risk limit that you have decided for that particular day. The last one which I said, ये 2019 was an election year, तो ये full budget वाला था. If you want to note down the date is basically 5th of July 2019. यहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट एक छोटी सी अप ट्रेंड में चल रही थी, हालांकि ऑलमोस्ट नियर द 80 ही थी, और उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा फॉल आई थी इसमें ऑन द डे ऑफ द बजट, एंड इनफैक्ट यू नो द टोन ओनली चेंज बिकॉज बजट के बाद ये सिर्फ गिरता ही रहा. तो लेट्स क्विकली व्यू इट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर अगेन एक छोटा सा एक रेंज में था सुबह के, और ये सुबह के रेंज और प्लस ये वाले जो सपोर्ट, जो इसके पहले वाला हमने एग्जांपल देखा था, वहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थे, और जैसे ही वो ब्रेक करता है तो ऊपर चली जाती है. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सपोर्ट, ये सपोर्ट को उसने टेस्ट किया, जैसे ही ब्रेक होता है ये सपोर्ट, आई विल मार्क इट फॉर यू गाइस. ठीक है, ये देखिएगा, ये 11,932 का बहुत बार सपोर्ट इसने ले चुका था. ऑन द प्रीवियस डे इटसेल्फ इट हैड टेकन 3 थ्राइस. बजट के दिन भी एक और बार लिया, और उसके बाद देखिएगा देयर वाज अ क्लीन ब्रेकडाउन. जैसे ही ब्रेकडाउन, अगर फॉर दोस ऑफ यू जो एमबी देखते हैं, यहाँ पर भी आपको एमबी दिख रहा होगा, तो इसके बाद यहाँ पर एक क्लीन ब्रेकडाउन है, एंड देन देयर वाज अ शार्प ट्रेंडिंग मूव. एक छोटा सा मतलब एक झटका तो आता ही है, एंड इट इज़ प्रिटी नॉर्मल एज फार एज हमने देखा है कि एक्सेप्ट 2021 जहाँ पर एक क्लीन ट्रेंडिंग मूव मिला है, उसके अलावा जो पुल बैक्स भी आती है वो भी शार्प होती है इसमें, बट नंदलेस यहाँ पर आपको क्लियर एक ट्रेंड डेफिनेटली मिल रही है. तो यहाँ पर भी अगर आप टाइम के हिसाब से देखोगे तो ये ब्रेकडाउन देखो आई है समवेयर अराउंड 11:30 इटसेल्फ. ये 2019 का डेटा है, तो 11:30 को ये ब्रेकडाउन आया है. उसके बाद फिर से यहाँ पर एक शार्प डाउनफॉल आया है. ये डाउनफॉल शुरू हुई है समवेयर अराउंड 12:45 को, और ये इट लास्टेड टिल अराउंड 1:30, क्योंकि 1:30 के बाद ये दिखेगा काउंटर ट्रेंड, मतलब एक पुल बैक आई है 1:30 से, और उसके बाद वापस इट बेसिकली फेडेड आउट. तो जस्ट रिमेंबर कि आपको कैसे इस पर्टिकुलर डे को प्लान करना है, और उसके हिसाब से आप जाके अपना प्लान और अपने first of all understand whether you're an option buyer or option seller, and whether you want to deal with the volatility, and only after all those things you should go and backtest thoroughly before putting the money on in this particular market, especially when the volatility is way too high. ठीक है, so that's about it for our budget analysis. I hope you would have definitely got some new insights from this particular analysis. If yes, please do hit the like button, and do share it on the comment section कि आपने ये particular video से क्या नया सीखा है, and what are you planning to do on the budget day. Let me know on the comment section. If you ask me, I'm not going to be much active on the day of the budget, Saturday being a weekend, so let's see, but देखते हैं क्या होता है आगे कि बजट के बाद वेदर एक्चुअली देयर इज अ शिफ्ट इन द करंट सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट्स, और वेदर देयर विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉल. लेट्स सी क्या होता है. आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग आज, बिकॉज एज आई सेड यहाँ पर बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन 30th of Jan. तो एक और दिन जाना बाकी है, और उसके बाद बेसिकली समझेगा कि कहाँ पर हम लोग वी आर पोजिशन. बट yes, if I just look at this particular definitely ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज दिख रहा है हमें बजट के पहले. ये दिस इज द 425 से ये 22,780 के आसपास. तो जब तक मार्केट इसी रेंज में है तब तक हमको ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं, बट मोस्ट लाइकली यू नो व्हेनेवर द मार्केट हैज़ फॉर्म्ड दिस काइंड ऑफ ह्यूज रेंज, budget will definitely give some sort of a strong momentum on either side. तो आइडिया मेरा मतलब मैं मेरा बेसिक आइडिया बता रही हूँ. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो. तो अज्यूमिंग कि कल भी ये रेंज के अंदर ही रहता है, तो लाइक सैटरडे इट शुड ईदर गिव दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट फॉर अ फ्रेश अप मूव, और क्लीन ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल 700 फॉर अस टू कंक्लूड कि मोस्ट लाइकली मार्केट डाउन साइड में जा रही है. तो ये दोनों में से कोई तो ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट काफ़ी टाइम से ये पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है. काफ़ी टाइम से, इफ़ आई टेल यू, इट्स फ्रॉम 13th of January टिल 30th of January, और कल का एक और दिन बाकी है. तो लेट्स सी, दिस इज़ व्हाट मेरा बेसिक प्लान है ऑन द फॉर द डे ऑफ द बजट. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. See you soon guys, and I wish you all the best, and please do protect your capital. As I said, ये एक ही दिन आता है पूरा साल में. even if you मतलब take a छुट्टी और duck it, that's okay. just trade बाकी rest of the days when the volatility is not too high. ठीक है, see you, bye bye, take care.